Good morning to all my dear students. Today in this lecture we will again study some of the topics which is regarding the GST. Okay, in the last lecture also we have studied what is GST and what are the different types of taxes applicable in under GST. Now here this chart is showing all these things. Okay, so एक revision भी हो जाएगा. See, under GST, under goods and service tax, there are two types of taxes are applicable. These two types of taxes are intrastate movement and interstate movement. Okay, under intrastate movement, what does it mean? If any supplier is selling his goods within the boundaries of state. ओके, व्हाट डज इट मीन? अगर महाराष्ट्र का सप्लायर महाराष्ट्र में ही गुड्स सेल आउट कर रहा होगा, सो इन दिस केस ही विल हैव टू डिवाइड हिज जीएसटी अंडर CGST and SGST. Okay, if the movement of goods is covering within the boundaries of the state, then in such a case you have to charge, or that supplier will make payment of GST under central GST and at the same time under state GST also. Is that clear? And if that supplier is selling his goods outside of the Maharashtra, so outside of the Maharashtra means what? अगर वो supplier कहाँ का है? That supplier belongs to Maharashtra but selling his goods to Rajasthan. So in that case, that supplier will have to make make payment of taxes of GST under integrated GST. That is what IGST format में उसको क्या करना पड़ेगा? उसके गुड्स को सेल आउट करना पड़ेगा. इज दैट क्लियर? सो दिस इज व्हाट द पेमेंट ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी. ओके, इंट्रास्टेट टैक्स मतलब कौन सा टैक्स? वेयर इन द गुड्स आर selling within the boundaries of Maharashtra, so under it CGST and SGST will be applicable. So that type of tax will be divided for the central government and state government. And if the supplier is selling his goods outside the state, so at that moment the integrated tax will be applicable. Is that clear? Moving towards next slide. See, here also we have studied that input and output taxes. Where to utilize input CGST SGST and where to utilize output CGST and SGST. Okay, now see, if we will say about input means what? Input of raw material. Okay, making payment of rent or other expenses, input of utilities by supplier. ओके, एक सप्लायर है. सप्लायर क्या करता है? सप्लायर विल मैन्युफैक्चर गुड्स और एल्स आइदर ही विल परचेज सम गुड्स एंड देन आफ्टर सेल इट टू द आउटसाइडर. येस और नो? सो सप्लायर ने अगर कुछ परचेस किया होगा, वेदर इट इज़ फिक्स असेट और वेरिएबल असेट. ओके, सो वेदर इट इज़ परचेस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा. ओके, वो अगर फर्नीचर अगर वो परचेस करता है या फिर रॉ मटेरियल परचेस करता है, इफ़ ही इज़ मेकिंग द पेमेंट ऑफ रेंट, अगर कुछ खर्चे करता है अपने बिजनेस के लिए फॉर यूटिलिटी पर्पज़, अगर बिजनेस में कुछ खर्चे करता है, सो एट दैट मोमेंट वॉट एवर द एक्सपेंसेस एंड वॉट एवर द परचेसेस ही विल डन फॉर हिज बिजनेस, सो एट दैट मोमेंट ही विल मेक द पेमेंट ऑफ input GST. Okay, in such a case input GST will be applicable. Is that clear? Whereas in case of output GST, output में क्या आता है? whenever supplier will sell his products in the market, so or else whenever he will sell his services in the market or goods in the market, so at that moment which type of tax he will pay? He will collect such tax. Okay, here he will not pay, here he will collect that particular tax. Why? Because supplier को क्या करता है? supplier अगर ये goods को sell करता है market में, so बदले में he is earning some income. Yes or no? He is earning some income either from goods or from services. So in that moment he is collecting that tax, which is known as which type of tax? Output GST tax. Is that clear? So whenever supplier will sell his goods and services in the market,
whenever the supplier will sell his goods and services in the market, so at that moment he will collect output GST from customer. Okay, so GST on output equals to output tax. Okay, परचेस करने के टाइम इनपुट GST एंड सेल करने के टाइम आउटपुट GST. इज दैट क्लियर? ओके, सो बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक वी हैव सम जर्नल एंट्रीज. ओके, अगर आप आज के दिन हम एक बेसिक क्वेश्चन लेंगे इन विच देर आर 2-3 जर्नल एंट्रीज आर बेस्ड ऑन GST. सो आपको ध्यान में क्या रखना है, सिर्फ और सिर्फ परचेस करने के टाइम वी विल यूटिलाइज इनपुट GST एंड सेल करने के टाइम वी विल यूटिलाइज आउटपुट GST. If there are certain expenses incurred by businessman, so in that case we will use the term input GST. Okay, अगर हम कुछ खर्चा करते हैं और कुछ भी चीज़ परचेस करते हैं, सो उसके वो टाइम एट दैट मोमेंट वी आर चार्जेबल फॉर input GST. Whereas whenever we will sell out certain goods or services, so at that time we will collect output GST from customers. Okay, अभी इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, we will study it in our journal entries. Is that clear? So moving towards next. See, here is our question. Here different number of journal entries are given. See, journalize the following transactions in the books of Rajkumar grocery seller. Okay, अभी ये ग्रॉसरी सेलर है. सो ही स्टार्टेड हिज बिजनेस एज ऑन 1 अप्रैल 2019. मैं ये फर्स्ट एंट्री रीड करने जा रही हूँ. सी दिस फर्स्ट एंट्री. राजकुमार स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ऑफ ₹2 lakh, बिल्डिंग ऑफ ₹2 lakh and borrowed loan from Rakesh for ₹50,000. Now here this cash is asset. Okay, building is also assets, but this borrowed loan is one type of liability. Asset को always have debit effect, whereas this loan taken from Rakesh is one type of what? It is one type of liability, and liability को कौन सा इफेक्ट देते हैं हम? क्रेडिट इफेक्ट देते हैं. Yes or no? Now based on this we have to pass one journal entry. See, journal entry क्या होगा? Being started business with cash, building and loan from Rakesh. So here what they have given you, see, cash account debit 2,50,000, building account debit 2 lakh and Rakesh loan account credit 50,000, and total capital is how much? 4 lakh rupees. Is that clear? ये total capital कैसे आया? See, 2 lakh plus 2,50,000 total comes to 4,50,000. ओके, बट ये 4,50,000 ये पूरा कैपिटल है क्या? नो, उसमें से कुछ अमाउंट क्या है? लोन अमाउंट है विच इज़ पेएबल इन नेचर. सो दिस लोन अमाउंट वी हैव शोन ओवर हियर. येस और नो? यू कैन सी राकेश लोन अकाउंट 50,000. ओके, सो माय टोटल कैपिटल, मेरा खुद का ओन कैपिटल कितना है? कैपिटल मीन्स ओन कैपिटल कितना है? 4 लाख रुपीज़. ओके, एंड लोन, उसमें से लोन अमाउंट कितना है? 50,000. Is that clear? Because I have taken loan from Rakesh. मेरे पास कैश कितना पड़ा था? 2 lakh. See in this question again. राकेश स्टार्टेड, इसीलिए मैंने ये पर्टिकुलर क्वेश्चन चूज़ किया है. राकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया बाय हैविंग ₹2 lakh. ओके, बट कैश के सामने 2 lakh लिखा है क्या? नो. सी इन द जर्नल एंट्री कैश के सामने कितना लिखा है? 2,50,000. वाई? बिकॉज राकेश ने लोन जो लिया है 50,000 का, वो भी तो कैश में उसने ऐड किया है. येस और नो? सो कैश में उसने कितना ऐड किया? 50,000 ऐड किया, जो कि उसने क्या लिया है? लोन लिया है फ्रॉम राकेश. ओके, सो दिस 50,000 वी विल ऐड इन कैश ₹2 lakh. ओके, बिल्डिंग अकाउंट 2 lakh एंड बोरोड लोन फ्रॉम राकेश 50,000. ये इसको अलग से एक और इफेक्ट हमें कहाँ पर देना पड़ेगा? क्रेडिट साइड में देना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ लोन अमाउंट. अगर हम याद करेंगे, एक पर्टिकुलर टॉपिक हमने स्टडी किया था विच इज़ बैलेंस शीट इक्वेशन. अगर बैलेंस शीट इक्वेशन में भी अगर हम देखेंगे, सो इफ़ वी आर स्टार्टिंग आवर बिजनेस विथ कैश, तो कैश अकाउंट इंक्रीज होता है 2 lakh से. एंड इफ़ वी आर टेकिंग लोन फ्रॉम राकेश,
सो राकेश से जो लोन लिया है 50,000, दैट कैश ऑल्सो वी एड इन अ कैश अकाउंट, yes or no? So total cash comes to cash account 2 lakh plus loan from Rakesh 50,000, total comes to 2,50,000. Building rupees 2 lakh, and ये particular loan account हमें अलग से फिर से दिखाना पड़ेगा separately. Is that clear? So this is how the entry of this particular transaction. Is that clear? Now moving towards next, deposited cash into देना बैंक रुपीज़ 50,000. अभी ये सिंपल डिपॉजिट का ही एंट्री है. सी, देना बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बिकॉज देना बैंक क्या है, इट इज़ अ पर्सनल अकाउंट. देना बैंक इज़ अ रिसीवर, सो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. हमारा कैश चला गया है बिजनेस में से. ओके, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस एंट्रीज. डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. आई होप ये आपको एंट्री पहले से ही आता होगा. ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट ट्रांजेक्शन. सी, परचेज कंप्यूटर फ्रॉम ब्रिजेश ऑफ रुपीज़ 30,000 एट 18% GST एंड पेड बाय चेक. ओके, अभी सबसे पहले तो ये GST अगर हम हटा देंगे. सी, सपोज ओके देयर इज़ नो GST गिवन. नाउ again read this sentence, purchase computer from Brijesh for rupees 30,000 and this 30,000 paid by check. So अगर हमारा एंट्री होता तो क्या होता, this is purchase of computer, so it is one type of what, fixed asset, yes or no? Okay, so fixed asset के टाइम हम क्या लिखते हैं, we write the name of that fixed asset. So computer account debit to bank account because we are making payment by check. Okay, but अभी कंप्यूटर परचेस करने के टाइम मिस्टर राजकुमार ग्रोसरी सेलर को क्या करना पड़ रहा है, ही हैज़ टू मेक पेमेंट ऑफ GST ऑल्सो. ओके, ये GST 18% है. ओके, एंड एट द सेम टाइम दे हैव नॉट गिवन वेटर इट इज़ विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री और आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री. ये परचेस कैसा है, सो सिंपली कंसिडर इज एट विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ नॉट कंट्री, विद इन बाउंड्रीज ऑफ स्टेट. ओके, सो ये सिंपल कौन सा CGST और SGST में ये 18% GST को हमें डिवाइड करना पड़ेगा, CGST में और SGST में. इज दैट क्लियर? सो इसको 50-50% डिवाइड करेंगे तो 30,000 के 18% टोटल आएगा. सी, 2,700 प्लस 2,700. सी, दे हैव गिवन GST. Okay, total GST. Under it, CGST is how much? CGST is 9%, whereas SGST is also 9%. So 9% plus 9% comes to 18%. Is that clear? So 30,000 computer account debit. Input CGST 9%, 2,700. Input SGST 9%, 2,700. to Dena bank account. Okay, before that we have made a simple entry, that is computer account debit to Dena bank account. But now computer आपने परचेस किया है, along with that CGST और SGST को भी आपको चिपकाना पड़ेगा. Is that clear? Okay, so 30,000 के ऊपर you have to classify 9% 9% फॉर CGST एंड 9% फॉर SGST. ये 9% कैसे आया, ये जो 18% CGST है उसका बाइफर्गेशन किया है इनटू 9%. इज दैट क्लियर? ओके, सो दिस टोटल कम्स टू 35,400. दिस टोटल कम्स टू 35,400 along with charging GST. Okay, and this GST is what? This is for purchase. Okay, और purchase के लिए we always mention input GST. Is that clear? Now moving towards next entry. See, cash sales rupees 90,000. सिंपल एंट्री है कैश सेल्स की एंट्री हम हमेशा क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. वाई? बिकॉज अगर हम कोई गुड्स सेल आउट करते हैं सो कैश विल कम, सो डेबिट व्हाट कम्स इन, सो कैश कम्स इन 90,000 एंड सेल्स अकाउंट से क्या होगा, हमारा इनकम आएगा. इनकम के लिए कौन सा सोर्स होता है, ऑलवेज क्रेडिट सोर्स होता है, क्रेडिट साइड होती है. सो सेल्स अकाउंट क्रेडिट. इज दैट क्लियर?
Now moving towards next entry. Yeah, on 15th of April, sorry 12th of April, goods sold on credit to Ganesh at 10,000 at rupees 10,000 and 5% ट्रेड डिस्काउंट. अभी 5% ट्रेड डिस्काउंट मतलब क्या करना पड़ेगा? वी ऑलवेज मेंशन कैश डिस्काउंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. ओके, वी नेवर मेंशन ट्रेड डिस्काउंट. सो ट्रेड डिस्काउंट को मेंशन तो हमें नहीं करना है. सो सिंपली क्या करना पड़ेगा? 10,000 में से 5% रिड्यूस करने के बाद जो नेट अमाउंट मिलता है, दैट नेट अमाउंट ओनली वी हैव टू शो इन आवर जर्नल एंट्री. Okay, see, goods sold on credit to Ganesh at rupees 10,000 and 5% trade discount. Okay, so sales का entry normal क्या होता है? There is a name of party is given and it is credit sale. So party name आ जाएगा Ganesh account debit to sales account and 5% less करने के बाद amount comes to 9,500. Is that clear? As the Ganesh is the personal account, Ganesh is the receiver of that goods. Okay, and Ganesh को मैंने goods कैसे sell किए हैं? On credit basis I have sold goods to Ganesh, so that Ganesh is what? My debtor. Okay, I am supposed to receive money, that is 9,500 from Ganesh, so he is my debtor, तो मैंने उसको debit effect डाल दिया है. Okay, sales is one type of revenue, तो sales credit में. Is that clear? Okay, now moving towards next entry. गणेश रिटर्न गुड्स ऑफ रुपीज़ 950. अभी गुड्स रिटर्न हो गए. गुड्स रिटर्न मीन्स इट इज़ वन टाइप ऑफ सेल्स रिटर्न. गुड्स आ रहे हैं. ओके, सेल्स को मैं क्रेडिट में लिखती हूँ, सो सेल्स रिटर्न विल कवर्ड अंडर डेबिट साइड. एंड एट द सेम टाइम द अनदर नेम फॉर सेल्स रिटर्न इज रिटर्न इनवर्ड. Okay, we have studied that thing in the subsidiary book. So it is return inward or sales return, whatever you want, whatever the word you will choose, that will be correct option. Okay, either write down sales return or just write down return inward for rupees 950. See the journal entry. Yeah, here return inward account debit or sales inward account debit 950 rupees to Ganesh account. Okay, here is the journal entry for this. Okay, and don't consider this narration. ये narration उन्होंने गलत लिख दिया है. narration आप क्या लिखोगे? being goods return from Ganesh. Is that clear? Okay, now moving towards next journal entry. On 18th of April, see this entry. On 18th of April, goods taken by Rajkumar for his personal use rupees 1,000. ये राजकुमार जो ग्रॉसरी सेलर है उसने बिजनेस में से गुड्स कुछ क्या कर लिए हैं? पर्सनल यूज़ के लिए निकाल दिए हैं. कितने अमाउंट के गुड्स थे? 1,000 रुपीज़. सो इट इज़ ड्राइंग्स का एंट्री. ओके, सी ड्राइंग्स का एंट्री क्या होता है? ड्राइंग्स इज व्हाट? Drawings always reduces our capital. Okay, drawings covered under personal account. Who is the receiver? That particular proprietor is receiver. So वो proprietor खुद का ही नाम लिखेगा खुद के books of account में? No. What he will write down? He will write down the name as a drawings. Goods withdrawn for rupees 1,000 and goods account is real account. Debit what comes in and credit what goes out. Goods are going outside of the business. Okay, so क्या लिखा है? To goods withdrawn by proprietor account. Okay, 1,000 rupees. So this is what drawings का entry. Being goods withdrawn for personal use. Now moving towards next entry. See, paid telephone charges 500 rupees and taxi fare rupees 200. Here as on 20th of April. Now see what is the journal entry for this. Telephone charges account debit, conveyance account debit to cash account. Why telephone charges and conveyance are expenses? These both are what? Expenses account. Expense always have debit side. Okay, so debit कर दिया है मैंने खर्चों को. और cash account is real account and debit credit what goes out? Cash goes out.
ओके, बिकॉज रियल अकाउंट का रूल ही क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस में से कैश जा रहा है तो मैंने उसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया फॉर ₹700। इज दैट क्लियर? नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट एंट्री। सी, अभी ये फिर से अलग एंट्री आ गया। सी, as on 22nd of April paid transport charges for ₹5,000 at 5% GST. ओके, मैंने पहले भी बोला है, इफ़ देयर इज़ एनी काइंड ऑफ पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस और एनी काइंड ऑफ पेमेंट फॉर परचेसेस, सो एट दैट टाइम विच टाइप ऑफ GST इज एप्लीकेबल, इनपुट GST एप्लीकेबल। नाउ ये 5,000 के ऊपर कौन सा GST एप्लीकेबल होगा, input GST, and for how much percent? See, they have already given 5%. So what you will do is transport charges account debit, okay, then CGST, input CGST account debit, input SGST account debit to कैश। ओके, क्योंकि यहाँ पर पेमेंट कैसे करना है उन्होंने दिया नहीं है, सो कंसिडर इट एज कैश पेमेंट। लेट्स सी द एंट्री ऑफ दिस। एंड ये 5% को डिवाइड कैसे करेंगे, 2.5% फॉर CGST एंड 2.5% फॉर SGST। हियर इज अ जर्नल एंट्री, ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट 5,000 के ऊपर 2.5% CGST, 2.5% SGST, and the final amount with CGST is 5,250. Is that clear? Being paid for transport charges including 5% GST. Okay, GST के आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही टॉपिक दिया है। You only and only have to charge GST either on purchase or sales or expenses type of transactions. Okay, income or expense type of transaction. Is that clear? Okay, now further moving towards next entry. पेड ऑडिट फीस बाय ₹5,000 बाय चेक। एकदम सिंपल एंट्री है, जस्ट पेमेंट करना है ऑडिट फीस। ऑडिट फीस इज वन टाइप ऑफ एक्सपेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, सो ऑडिट फीस अकाउंट डेबिट एंड वी आर मेकिंग पेमेंट ऑफ दिस ऑडिट फीस बाय चेक। सो चेक से पेमेंट करना है तो क्या होगा, ऑडिट फीस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, सी हियर ऑल्सो दे हैव गिवन ऑडिट फीस अकाउंट डेबिट, ऑडिट फीस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट फॉर ₹5,000। ओके, now moving towards next entry, purchased furniture for ₹70,000 and amount paid by check at 12% GST. Now again this GST will be bifurcated for CGST and SGST. And which type of purchase है तो कौन सा GST लगेगा, input GST. So furniture purchased account debit, input CGST account debit, input SGST account debit to what, बैंक अकाउंट, एंड विच बैंक अकाउंट, देना बैंक अकाउंट। इज दैट क्लियर? सो ये 12% का क्या करने का पड़ेगा, बाइफर्केशन इनटू 2 पार्ट्स। सी हियर इज द एंट्री, फर्नीचर अकाउंट डेबिट फॉर ₹70,000, 12% GST is total GST, under it 6% is for CGST and 6% for SGST. So 70,000 के 6% निकाले, either you can write down the 6% of 70,000 or you can directly make the 12% of 70,000. अभी 70,000 के 12% निकालने के बाद you can simply make the amount of that particular answer 50-50. Okay, for example 70,000 into 12% is 9,600. Okay, it is 9,600. Okay, और 9,000 का हाफ कर दिया, दैट इज 9,600 को डिवाइड बाय 2 कर दिया, सो यू विल गेट आंसर 4,200. सो 4,200 भी आप ऐसे लिख सकते हो. ओके, दिस इज द शॉर्टकट वे. फर्नीचर अकाउंट डेबिट, जैसे ही हम जो फर्नीचर हमने परचेस किया है उसके ऊपर जीएसटी हमें पे करना है. सो फर्नीचर के साथ साथ हमें क्या लिखना पड़ेगा, उसे जीएसटी को भी हमें पे करना है. पे करना है मतलब उसे हमें डेबिट कर देना है. इज दैट क्लियर? सो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू देना बैंक अकाउंट. इज दैट क्लियर? ओके, मेक श्योर दैट you have understand this
जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग जीएसटी एकदम सिंपल है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें और ज़्यादा कुछ ट्रिकी नहीं है. ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट जर्नल एंट्री. हाँ, सोल्ड मोटर कार, अभी ये सेल है. ओके, सी हियर इट इज सेल्स. सेल है तो क्या करना पड़ेगा, मोटर कार को तो सेल कर दिया है. सिंपल जर्नल एंट्री इज क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. ओके, नाउ सी sold motor car worth rupees 1 lakh for 18% GST and the sales proceed credited to our account. Okay, what does it mean, ये sales proceed को credit कर दिया है and this 18% GST is applicable on sale. Okay, और sales के ऊपर ये GST के क्या होता है, we will collect such GST and that is why what we will consider it as, we will consider it as output GST. Is that clear? This GST is what? Output GST. Now see the journal entry for the same. नॉर्मल जर्नल एंट्री क्या होगा, अगर हमने पेमेंट रिसीव किया है बाय चेक, सो चेक अमाउंट दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. और सेल क्या किया है, मोटर कार. मोटर कार इज माय फिक्स असेट, तो मैं मोटर कार का नाम लिख दूंगी, मोटर कार अकाउंट. ओके, बट मोटर कार सेल किया है, उसके साथ साथ जीएसटी भी मैंने कलेक्ट किया है. येस और नो? सो यू हैव टू राइट डाउन द अमाउंट ऑफ जीएसटी अलॉन्ग विद द अमाउंट ऑफ सेल्स. ओके, सो मोटर कार अकाउंट 1 lakh rupee. दिस इज माय विच टाइप ऑफ अमाउंट, दिस इज माय सेल अमाउंट. ओके, माय सेल्स अमाउंट इज rupees 1 lakh. ओके, आई एम सॉरी, my sale amount is how much, it is 1 lakh. okay, and आउटपुट जीएसटी किसके ऊपर लगता है, हमेशा सेल्स के ऊपर लगता है. सो आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी इज 18%. ओके, 18% का हमने 50% कर दिया, सो इट कम्स टू 9%. सो 9% सीजीएसटी एंड 9% एसजीएसटी. ओके, 1 लाख का 18% होता है 18,000 एंड 18,000 को बाइफरगेट अगर हमने कर दिया फॉर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, सो इट विल कम्स टू 9,000 एंड 9,000. इज दैट क्लियर? सो अगर हमें सिंपल एंट्री कर दूँ सेल्स का, सो सिंपल एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोटर कार अकाउंट. ओके, बट सेल्स के साथ साथ यू हैव टू जॉइन जीएसटी ऑल्सो. जैसे कि हम परचेस के साथ साथ जीएसटी लिख देते थे, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू जीएसटी, सॉरी इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर टू बैंक, ऐसे लिख देते थे. सो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्स के टाइम जहाँ पर आपका सेल्स है उसके साथ साथ ही देना बैंक के नीचे लिखोगे क्या जीएसटी, नो, यू हैव टू राइट डाउन दैट जीएसटी फिगर नियर सेल्स फिगर. ओके, near sales figure. So my sales figure is how much for motor car, this is my sale figure. So sale figure के नीचे ही GST आएगा. Is that clear? Okay, now moving towards next entry. So this is my last entry, paid cash to Kavita 15,500 who allowed us discount of rupees 500. मैंने क्या किया, कविता को 15,500 पेमेंट कर दिया और उसने मुझे डिस्काउंट दिया 500 रुपीज़. Now make the journal entry for the same. See, Kavita account debit. Okay, now she is the receiver of my money, so 16,000 पे कर दिया उसको. Okay, 16,000 पे किया क्या, नो, 16,000 से उसका अकाउंट मैंने नील कर दिया. टू कैश अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सो मैंने कैश कितना पे किया, 15,500 पे किया. एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड, हाउ मच डिस्काउंट आई हैव रिसीव्ड, 500 डिस्काउंट आई हैव रिसीव्ड. इज दैट क्लियर? ओके, एक बार फिर से ये रीड करो ये एंट्री को. सी, पेड कैश टू कविता 15,500, 15,500 मैंने पे किया कविता को. ओके, सो दिस इज माई कैश पेमेंट एंट्री एंड वो अलाउड अस अ डिस्काउंट ऑफ रुपीज़ 500. सो ये दिस इज माई डिस्काउंट अलाउड एंट्री. ये दोनों को टोटल मिलाकर, टोटल मैंने कविता को कितने अकाउंट से नील कर दिया, कितने अमाउंट से, 16,000 रुपीज़ से नील कर दिया. सो हियर इज़ द एंट्री. ओके, कविताज अकाउंट डेबिट 16,000 टू कैश अकाउंट, कैश गोज आउट
15,500 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड इज़ वन टाइप ऑफ इनकम. इनकम को हमेशा क्रेडिट इफेक्ट होता है, सो इनकम इज़ 500 रुपीज़. इज दैट क्लियर? So here we are done with the journal entries with GST. I hope you have cleared with all those points. Still if you have any doubt then मुझे क्या करो, WhatsApp पे पोस्ट कर दो आपके कुछ डाउट्स होंगे. So I will be ready to solve it. Okay, so here we are done for the day. Thank you.